Dear student, today we will discuss about the natural resources. The resources which are provided by nature are called as natural resources. As we can see here, the resources which are provided by nature on the earth are different types, that are the air, water, soil, mineral and living organism. On the earth planet, whatever air, water, soil, minerals and living organisms are present, that are natural resources. Not only this, inside the earth there are the fossil fuels, metals, ores, all these are also natural resources. These resources are provided by nature. These are not man-made, so they are called as natural resources. These resources we are utilizing directly or indirectly. Like mineral, the plant are absorbing water mineral, they are synthesizing food. That mineral in their body get utilized for the synthesis of different type of food items, and now we are taking food. So mineral we are taking. Suppose calcium present in soil, iron present in soil, sodium, potassium, chloride present in soil in the form of plant are absorbing it. And when we are eating plant, then that calcium comes into our body. When we are taking milk, the cattle has eaten plant, calcium comes from plant into the cattle. In the milk we are taking, then calcium comes into our body. It helps in growth of our bones, our teeth, muscle contraction. It means these resources are present in nature. Directly or indirectly we are using, other plant animal are also using, plant are using directly. In the air there are the gases like oxygen. Oxygen we are using during respiration, we are releasing carbon dioxide, and the carbon dioxide become the part of atmosphere. Again plant are taking carbon dioxide during photosynthesis and they are releasing oxygen gas. Nitrogen present in atmosphere, the plant the microorganisms are converting this nitrogen into nitrate, then plant are absorbing nitrate for synthesis of protein, enzyme, hormone, amino acids, and ultimately we are also taking from the plant. So the resources are present in nature, and in different way it is circulating in nature and utilized. The some resources which are present inside the ground like fossil fuels, that is also being utilized by us. So here one by one we will discuss about these natural resources. हम लोग इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय प्रोवाइडेड बाय नेचर, एयर, सॉइल, water, mineral, plant, animals, fossil fuels, ores, ions, all these are the natural resources. So here you can see the lithosphere means soil, and here the hydrosphere, water, and the atmosphere, and the part of atmosphere, part of lithosphere, part of hydrosphere where living organisms are present, that is called as biosphere. Means we can say here suppose here is the soil, rocks. This is the part of lithosphere. Here is air, atmosphere contain air. Here is soil in the lithosphere. Here is the water. Water present in hydrosphere. But the part of lithosphere, the part of atmosphere, and part of hydrosphere where living organisms are present, that is called as what? Biosphere. Why we are talking about the biosphere? Because we are also the integral part of biosphere. We are using directly and indirectly these natural resources. Other plant, other animal are also using. Plant, I have told, the mineral, water they are using. Atmospheric air they are using. We are also using atmospheric air. So the part of lithosphere, part of atmosphere, part of hydrosphere where living organisms are present, that is called as biosphere. And here
now we'll discuss about the atmosphere. Atmosphere contains air. In atmosphere there is the air. What is air? Air is the mixture of gases. Air is the mixture of gases. Several gases are mixed there. Air is the mixture of gases like nitrogen, oxygen, hydrogen. Some inert gases are also there. Carbon dioxide, sulfur dioxide. Due to pollution also it is coming into atmosphere. So during respiration, you see, during respiration the animal is using oxygen. Plant are also using oxygen during respiration. But the animal will using CO2, and that CO2 taken by plant during photosynthesis. Again plant are releasing oxygen. This oxygen which is released by plant is using for burning up fossil fuel also. For oxygen is helpful in burning, and the fossil fuel burn in the industry, then they release carbon dioxide. Again carbon dioxide comes into atmosphere. It is used by the plant during photosynthesis. Again they release oxygen. Here in the presence of sunlight, here in the pond or the lake, river, here the algae are present. Algae use light and carbon dioxide. देखिए blue color से carbon dioxide को denote कर रहे हैं. Carbon dioxide, and they do photosynthesis. They release oxygen. Oxygen comes into atmosphere. And again oxygen used by other animals, other plant also. I told the plant are also doing respiration. But in the daytime, the plant are releasing oxygen, enough amount, some amount of oxygen they are using, but the maximum amount they are releasing because they are doing photosynthesis. And here animal always doing respiration. So they take oxygen which is released by the fishes हैं, पानी में रहती हैं. तो पानी में जो एक्वेटिक प्लांट है, जो एल्गी है, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनसे ले लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू एल्गी. और वो जो ऑक्सीजन रिलीज की वो फिशेस ले लें. फिशेस रिलीज CO2 and taken by this aquatic plant. So this way the natural resources means the air and the water used by the plant and animal both, these are going to use. You see this plant is growing in the soil, the plant is taking water mineral from the ground also. So these are the natural resources which are used by the living organism including human being. So air is present in atmosphere. Air is the mixture of gases. It contains so many type of gases. Oxygen 21% in the atmosphere, carbon dioxide 0.03% in the atmosphere, nitrogen 78% in the atmosphere, and other toxic gases are increasing due to the automobilization, industrialization. And basically the oxygen is used during respiration and carbon dioxide is used during photosynthesis, and nitrogen is used by the microorganism. They convert into nitrogen compound like nitrite, nitrate, ammonium compound, and then absorbed by the plant for synthesis of amino acid and protein. Now the role of atmosphere in control, climate control. क्या atmosphere का role है climate control में? Atmosphere plays very important role in climate control. How? You see, in the atmosphere there is air, different composition of air are present. When sunlight, solar light comes on the earth, when it comes on the earth, the so many gases which are present in the atmosphere, especially the carbon dioxide, the light energy which is trapped, which is reflected from the earth, that is absorbed in these atmospheric gases. Then the atmospheric temperature is maintained. हमारे एटमॉस्फेयर में अगर एयर नहीं होता तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता. मून पे देखिए, चंद्रमा पे एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां दिन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है. तो नो एनीवन कैन सर्वाइव. एकदम से 110 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में हो जाए, रात में एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाए, हु विल सर्वाइव? बट यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन. दिन में ज़्यादा है, रात में कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि एयर जो होता है उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है. अब जैसे यहाँ से सन है, सनलाइट आया, जमीन पे लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसमें जो CO2 है, जो गैसेस है, ये क्या है, कुछ मीथेन भी है. अब ये गैसेस जो है फ्लोरोकार्बन्स भी हैं, CFCs,
तो ये जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रिफ्लेक्टेड है, जो ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, इस अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होकर टेम्परेचर जा रहा है, इसको ट्रैप कर लेती है, स्पेस में नहीं जाने देती, और जब ट्रैप कर लेगी तो यहाँ का टेम्परेचर बना रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल में भाग लेते हैं। अभी देख रहे हैं दिनों दिन जो फॉसिल फ्यूल बंद हो रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, मीथेन निकल रहे हैं। अब जब CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, तो जितनी लाइट एनर्जी आ रही है, अब जो कुछ स्पेस में चली जाती थी, नाउ मैक्सिमम ज़्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप हो जा रही है। और जब ज़्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप हो गया तो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, गर्मी के दिन में आप देखिए टेम्परेचर कितना 55 के लगभग, उससे भी ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। हम लोग की बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो 37 से कम है 25 to 35, 36 तब तो ठीक है, लेकिन जैसे इससे ज़्यादा बढ़ता है हम बिल्कुल असहज हो जाते हैं। पेड़ पौधों के ऊपर असर होगा, वो भी सूखने लगेंगे, अन्य जलधारियों के ऊपर असर होगा। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका जो कंपोजिशन चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल डीजल बर्न हो रहे हैं और वो CO2 बन के वातावरण में आ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकल रहे हैं, वातावरण में आ रहे हैं, और ये आकर के क्या करते हैं, पहले तो कम थे अभी बढ़ रहे हैं। अब ये जो टॉक्सिक गैसेस बढ़ रही हैं, मीथेन बढ़ रहा है, ये सब सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CO2 भी इसमें नंबर 1 पे है, 60% ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से होता है। आप कहेंगे CO2 क्यों बढ़ रहा है? CO2 को कौन बैलेंस करता है? ग्रीन प्लांट बैलेंस करते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? CO2 को लेके भोजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट को काटते जा रहे हैं। जहां वन थे वहां काट करके रोड बिछा दिया, लाइन बिछा दिया, फैक्ट्रियां लगा दी, खेती होने लगी। तो ठीक है, खेती होना जरूरी है, बट जो खाली जमीन है रोड के चारों तरफ, रेलवे ट्रैक के चारों तरफ, जहां जहां पड़ती जमीन, वहां पेड़ पौधे भी तो लगने चाहिए ना। पेड़ों को काट के हम शहर बसाने लगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे अब उनकी संख्या कम हो गई, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हम सारे लोग तो ऑक्सीजन लेके CO2 ही देते हैं ना, और भी एनिमल है जो CO2 देते हैं ऑक्सीजन लेके, लेकिन पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेके CO2 लेके ऑक्सीजन देते हैं। दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उनकी संख्या कम होने लगी, इसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में, दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल। अगर इनकी संख्या, इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। आने वाले समय में ऐसे ही अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा, CO2 की मात्रा बढ़ती रही, तो व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। जहां ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे द वाटर विल कम इनटू रिवर, देन रीच इनटू सी, द लेवल ऑफ सी वाटर विल इंक्रीज। होगा क्या? इतना ज्यादा सी वाटर लेवल बढ़ जाएगा कि जो शहर के किनारे, जो समुद्र के किनारे शहर है, वहां बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, और जहां ड्राउट है वहां तो ड्राउट और हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इल नीनो इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कट ऑफ करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि CO2 की मात्रा, और फॉसिल फ्यूल को कम करना है, कम कंजम्पशन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने, भी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है, दैट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल में। और दूसरी चीज है कि देखते हैं आप मूवमेंट, विंड जो हवा है, एयर है, एयर को हम विंड भी कहते हैं। कब? जब वो मूव करेगा। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। जब वो मूव करने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब एयर मूव क्यों करता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। एयर का प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से कम प्रेशर की ओर जाएगा। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा, ये भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर निर्भर करता है कि कहां से कहां एयर जाएगी। अब दो एरिया हो गई, एक तो टेरेस्ट्रियल प्लेन एरिया हो गई, एक समुद्र का इलाका हो गया। एक समुद्र का एरिया हो गया और एक प्लेन एरिया हो गया। जरा यहां देखिए, डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में यहाँ पे प्लेन इलाका है, यहाँ पे जमीन है, पेड़ पौधे जमीन है। यहाँ जो ब्लू कलर से है समुद्री इलाका है, यहाँ समुद्री इलाका है और यहाँ पे जमीन का इलाका है, जमीन है। तो जैसे लाइट आएगी, सनलाइट आई जमीन पे, तो दिन में क्या होगा? दिन में तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो लाइट आएगी वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, समुद्री पानी में।
यहाँ समुद्री पानी में एब्जॉर्ब हो गई लाइट एनर्जी, तो यहाँ की एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा, जैसे लाइट सनलाइट आया वो रिफ्लेक्ट हो गया जमीन के सरफेस से, तो यहाँ पे जो गैसेस है उनको एब्जॉर्ब कर ली और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। और जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की जो हवा है उठ के ऊपर चली जाएगी, हल्की होकर के गर्म होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उठ के ऊपर चली गई, तो यहाँ प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। जब प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ पे तो एयर कूल है, यहाँ की हवा उठ के ऊपर तो जाएगी नहीं, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और जब यहाँ की हवा ऊपर उठ के जाएगी तो यहाँ की हवा उसको भरने के लिए आएगी। मतलब डे टाइम में विंड कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम सी टू प्लेन। इन द डे टाइम द एयर मूव्स, विंड ब्लो फ्रॉम सी टू प्लेन। अब रात में ठीक इसका उल्टा होगा, रात में होगा क्या, अब देखिए दिन में तो यहाँ पे जो लाइट आई थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, डिसिपेट हो गई। अब जैसे सूर्यास्त होगा यहाँ पे प्लेन इलाका पूरा लाइट एनर्जी को जो कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट किया था रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ कूल हो गया तो यहाँ की एयर ठंडी हो गई, जमीन की सतह के ऊपर एयर ठंडी हो गई एकदम। अब वहां पे बनी हुई है एयर, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन रात में जो पानी दिन में सोखा था पौधे ने, जल ने पानी जो टेम्परेचर को लिया था, समुद्र का पानी जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया था, अब ये क्या करेगा, रात में वायु ठंडी हो रही है तो ये उसको हीट को डिसिपेट करेगा, और जैसे उसकी हीट डिसिपेट यहाँ की एयर गर्म होती रहेगी, यहाँ गर्म होती रहेगी। जो पानी एब्जॉर्ब किया था दिन में हीट उसको डिसिपेट करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उतना ही उसको रेडिएट भी करता है, तो रेडिएट करेगा, और जब रेडिएट करेगा तो यहाँ की हवा गर्म हो गई, ये हवा उठ के ऊपर चली, समुद्र के ऊपर जो समुद्र के सतह के ऊपर जो हवा है उठ के ऊपर चली गई। तो जब उठ के ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हवा है, यहाँ ठंडी हवा। अब ये हवा ब्लो करेगी कहाँ, प्लेन टू सी। तो रात में एट द नाइट टाइम द एयर मूव्स फ्रॉम प्लेन टू सी, दिन में फ्रॉम सी टू प्लेन। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर। ये पूछा जा सकता है आपको। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेन की। रेन क्या है, रेन होता कैसे है। अब जरा देखिए, जैसे ही दिन में सूर्य की रोशनी आई, सूर्य की रोशनी आने से टेम्परेचर वायुमंडल का भी बढ़ेगा, और वही लाइट पानी में पड़ा तो पानी में क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका इवेपोरेशन होगा, भाप में बदलेगा, और भाप में बदल करके फिर उठ के आ जाएगा एयर में। और जो पौधे हैं, जैसे ही दिन हुआ, लाइट आया, एनर्जी आई, टेम्परेचर बढ़ा, द प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। द प्लांट विल डू ट्रांसपिरेशन, रिलीज वाटर इनटू एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उनकी सतह का वाटर जो है भाप में बन के आएगा, वो आकर के जब एटमॉस्फेयर में जाएगा ऊपर भाप, तो जैसे ऊपर जाएगा कूलिंग, ड्यू टू कूलिंग अंडर वो कंडेंसेशन, और बादल में बदल जाएगा, और बादल में बदलने के बाद अगेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। तो आपने देखा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ, और भाप ऊपर आया, वाटर वेपर, अगेन टेम्परेचर ऊपर में कम होगा, फिर कूलिंग हो जाएगा, कंडेंसेशन, अगेन गेट कन्वर्टेड टू रेन वाटर एंड कम्स ऑन द ग्राउंड। जैसे जमीन पे आएगा फिर ग्राउंड के अंदर चला गया, अंडरग्राउंड वाटर कुछ रिवर से होते हुए समुद्र में चला जाएगा, अगेन फिर भाप के रूप में फिर ऊपर आया, ट्रांसपिरेशन के रूप में फिर भाप आया, और फिर वो कंडेंसेशन हुआ, फिर बादल में बदला, फिर बरसात हुई। सो दिस वे ऑलवेज द रेन, अगेन द वाटर साइकिल टेक्स प्लेस, रेन अकस। यहाँ देखा बादल, एक कंडेंसेशन हुआ, यहाँ बादल फिर बरस करके फिर यहाँ पानी दे दिया। तो इस तरह से ये चलते रहता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर ठीक से इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि रिसाइकिल होते रह रहा है, लेकिन हम लोगों की गतिविधियों की वजह से इनकी मात्रा कम हो रही है। तो इसलिए हमें इनको मैनेज करना है, प्रॉपरली यूज करना है, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करना है। हमारे यहाँ 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर, समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन वो मेराइन वाटर है, वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, क्योंकि साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे एनिमल वहाँ रहते हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। और हमें फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर कहाँ है, पांड में, रिवर में, लेक में। अंडरग्राउंड वाटर भी है, कुछ ग्लेशियर्स के रूप में है, और इसी फ्रेश वाटर से हमें इरिगेशन भी करना है, क्लीनिंग भी करनी है, अपना भी काम चला, पौधे भी उसको लेते हैं। तो हमको इस फ्रेश वाटर को बहुत प्रॉपरली मैनेज करना है। बहुत सारा पानी तो हम
पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं। नदियों में वेस्ट मटेरियल, ह्यूमन एक्सक्रीटा, तमाम सारी गंदगियाँ छोड़ दे रहे हैं और वहाँ पानी पॉल्यूट हो जा रहा है। तो इसको भी हमें बचाना है। तो वाटर, अब हमने एयर पॉल्यूशन की बात करी। एयर, अभी हमने बात किया था कि पॉल्यूशन हो रहा है एयर की मात्रा। तो एयर पॉल्यूशन है क्या? The undesirable change in composition of air which causes harmful effect on living organism, that is called as air pollution. एयर में जो चेंजेज आ रहे हैं, कैसे चेंजेज आ रहे हैं? ये चेंजेज आ रहे हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू माइनिंग, ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स. The toxic gases like sulfur dioxide, carbon dioxide, so many gases are going to release, so many particles are going to release. They are coming into air and they are creating pollution. सल्फर डाइऑक्साइड आ गया बरसात के रूप में, वो सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल करके सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जमीन पे एसिड रेन. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के रूप में आएगा. अभी आगरे का ताजमहल क्या है? उसका जो संगमरमर है, मार्बल क्रोजन हो रहा है. क्यों? वहां मथुरा में रिफाइनरीज है. इट इज रिलीजिंग टॉक्सिक गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब बरसात होती है वो पानी में घुल करके एसिड रेन के रूप में आ रहा है. तो दीज आर ड्यू टू हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब वो एसिड रेन होगा तो सॉइल का भी टेक्सचर बदलेगा, सॉइल का ऐसे पीएच एसिडिक हो जाएगा, प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, स्किन में पड़ेगा, वहां बर्निंग होने लगेगी, प्लांट टिश्यू को डैमेज करेगा. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल इफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. और सबसे पहले तो एयर में जो टॉक्सिक गैसेस आती है, हम जो सांस लेते हैं क्या होगा उसका? जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, अब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तमाम टॉक्सिक गैसेस जब आएंगी तो क्या होगा? हमारे फेफड़े में जाएगा, हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा, श्वास की बीमारी उत्पन्न करेगा. तो एयर पॉल्यूशन, द अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर व्हिच कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन. होता क्यों है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस from the automobiles and factories, due to combustion of fossil fuels. इनकी वजह से टॉक्सिक गैसेस आ रही हैं और पॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजिंग में देखिए ये फैक्ट्रियां लगी हैं, पूरा स्मॉग है. बीजिंग में तो यही स्थिति है कि ऑक्सीजन का कैन लेके चलना पड़े, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलने वाली. भूटान में डेवलपमेंट ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वो सबसे अधिक हैप्पी है. क्यों? क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन नहीं के बराबर है, फॉरेस्ट ज़्यादा है. द ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स उनका बहुत ज़्यादा है. और जहाँ बहुत डेवलप्ड कंट्री, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है. इटली में एसिड रेन के ऊपर में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कमरे के अंदर, हॉल के अंदर, और बाहर में एसिड रेन हो रहा था. इसका मतलब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है. तो जहाँ जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ टॉक्सिक गैसेस उतना ज़्यादा एमिट होंगी एटमॉस्फेयर में, और वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालेंगे. मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन एक सीमा तक हो. बाकी बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव प्रोसेस हैं जिससे हम जीविका चला सकते हैं. इंडस्ट्री, हर जगह इंडस्ट्री बैठाना जरूरी नहीं है. इंडस्ट्री बैठाना है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगाइए, उसमें स्क्रबर लगाइए, उसमें फिल्टर लगाइए. टॉक्सिक गैस को एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दीजिए. एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो नहीं होगा पॉल्यूशन, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा. और बताया ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ये सारा पॉल्यूशन हो रहा है, और इसी की वजह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, हार्ट डिजीज, तमाम सारी डिजीज और रिस्पिरेटरी डिजीज है, ये सारे हो रहे हैं. आप देख सकते हैं कि पूरा ये टॉक्सिक स्मोक से निकल के आ रहे हैं, फिर बरसात होगी, फिर वो जमीन पे आएंगे और फिर वो हानि पहुंचाएंगे. और जो डायरेक्ट हम हवा में सांस ले रहे हैं वो भी हानि दे रहे हैं. इसके अलावा वाटर इज वंडर लिक्विड. जीवन की उत्पत्ति ही पानी में हुई है. हमारे शरीर के अंदर सेल के अंदर में प्रोटोप्लाज्म, उसमें भी वाटर है. पौधे में भी उसके प्रोटोप्लाज्म में वाटर है. आप देखिए एक सीड है ना, सीड को इतना ड्राई कर दीजिए वो जर्मिनेट नहीं होगा. जब पानी में डालते हैं, जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो फिर सीड क्या करता है? जर्मिनेशन स्टार्ट करता है. तो प्रोटोप्लाज्म में इतना कम पानी हो जाएगा, 1% के लगभग हो गया, तो वो लिविंग प्रोसेस नहीं करेगा. फिर पानी जब एब्जॉर्ब करेगा, आपने बताया ना, सीड ड्राई हो गया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा. जब उसको सोख करते हैं या जमीन में डालते हैं, नम भूमि में जब पानी एब्जॉर्ब करता है तब उसमें लिविंग प्रोसेस शुरू होता है. तो बहुत ही वंडरफुल लिक्विड है वाटर.
इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ प्रोसेस, वाइटल रोल अदा करता है यह हमारे शरीर के। इट इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी भाग लेता है वाटर। फोटोसिंथेसिस, वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो अब वाटर, फ्रेश वाटर, नदी, तालाब, अंडरग्राउंड वाटर, तो इसको हमें बचा के रखना है, सुरक्षित यूज करना है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत आ रही है, यहाँ भी पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। Undesirable change in the physical, chemical and biological composition of water which causes harmful effect on the living organism, that is called water pollution. अभी वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? तमाम सारी फैक्ट्रियों का जो इन्फ्लुएंस है, नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, टाउन बसे हैं, अपना पूरा पूरा कचरा, मल मूत्र उसी नदी में डाल रहे हैं। फैक्ट्रियों के वेस्ट मटेरियल उसी में जा रहे हैं। इनको पॉइंट पॉल्यूशन कहेंगे। इनको हमें रोकना चाहिए। सीवेज को ट्रीट करना चाहिए ताकि वो पॉल्यूशन न उत्पन्न करे। डायरेक्ट नदियों में, तालाबों में नहीं छोड़ना। गांव के भी कचरे बहकर के, नाले बहकर के तालाब में जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन फैलाएगा ही, टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगा। इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड, वीडीसाइड खेत में यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड, वो भी बह करके कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडीज में जा रहा है। दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, चेंजिंग द पीएच ऑफ वाटर। एक्वेटिक फिशेस हैं वो खत्म हो रही हैं, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इवन जो इंसान उसको यूज कर रहे हैं उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। आप गंगा नदी को देखें, गंगोत्री से लेके बे ऑफ बंगाल 250 किलोमीटर, 2500 के लगभग किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके गंगा नदी का पानी पहुंचता है बे ऑफ बंगाल में। और उसके दोनों तरफ गांव शहर जितने बसे हैं, मैक्सिमम का कचरा उसी में जा रहा है। तो गंगोत्री के पास तो पानी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उससे जैसे आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे, आप पटना से होते हुए बे ऑफ बंगाल चले जाइए, प्रदूषण की रेंज बढ़ती जाएगी। क्यों? कचरे की मात्रा बढ़ रही है, बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ रहे हैं, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया में बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसे हमें रोकना होगा, वाटर बॉडीज को सेव करना पड़ेगा। कचरा उसमें नहीं डालना है, वेस्ट मटेरियल नहीं डालना है, सीवेज उसमें नहीं डालना है। सीवेज को प्रॉपरली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना है। तो अनडिजायरेबल चेंज विच कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग एंड कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। ये सारे पेस्ट अभी मैंने बोला, सीवेज, पेस्टिसाइड, जितने कचरे उसमें नहीं फेंकना है, उन्हीं की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। अब soil is also natural resource. On the soil, plant are growing, they are giving us food. Trees वहाँ पे हैं, हम लोग भी वहीं पे रहते हैं। अब क्या करते हैं? घरों से कचरे लेकर के आकर के कहीं न कहीं फेंक देते हैं। पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डाल रहे हैं, वो भी सॉइल के कंपोजिशन कुछ। तो अनडिजायरेबल चेंज इन द केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल व्हिच कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल इरोजन भी हो रहा है, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, विंड से, स्टॉर्म से, बाढ़ से, फ्लड से, मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह चल गई, सॉइल इरोजन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पहले रॉक्स पे लाइकिन आए, लाइकिन वहाँ डिकम्पोज हुए, थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर बना, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, धीरे धीरे टेक्सचर बदला, सॉइल में बदल गया। लेकिन अभी वो सॉइल क्या है? पौधे वहाँ पे ग्रो करते हैं, फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर आता है, फिर वहाँ भी डिकम्पोजिशन होता है। बेदरिंग ऑफ रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल आ जाते हैं, वो भी सॉइल में बदलते हैं ऑर्गेनिक मैटर से मिल करके। लेकिन ये सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है पेस्टिसाइड, वीडीसाइड की वजह से। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, इसके डंपिंग से भी पॉल्यूशन हो रहा है। अब soil is mixture of the rocks, particle, decaying organic, humus and living organism, minerals, air, water, ये सब के मिलने से बना है, and it plays important role in the development of plant. The texture of soil determine the quality of vegetation. जहाँ खूब पर्याप्त बरसात हो रही है, अरुणाचल देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ पे खूब वेजिटेशन है। जैसे वहाँ से बढ़ेंगे आप, बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए आप यूपी आई, यूपी से जैसे राजस्थान में जाएंगे, बरसात कम होती है, वहाँ डिजर्ट है, तो बरसात कम हुई, सॉइल का टेक्सचर, वहाँ सैंडी सॉइल है राजस्थान में, पानी कम है, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ डिकम्पोज कम हो, तो क्या है, सॉइल में पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं, पानी बरसात भी हुई तो चला गया नीचे, तो वहाँ पे उस तरह की वनस्पतियाँ नहीं हैं जिस तरह की वनस्पतियाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हैं, क्योंकि बरसात का रेंज वहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ बरसात का रेंज बहुत कम है। तो सॉइल का भी
कंपोजिशन उसी के आधार पे होगा, जितना उसमें ह्यूमस होगा, जितना पानी होगा, जितना नमी होगी, उसके हिसाब से वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट वनस्पतियों को ग्रो करने के लिए। और वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी तो एनिमल भी ज़्यादा होंगे, और जहाँ कम होगी वह एनिमल भी कम होंगे। तो इट डिटरमाइन द लिविंग अर्थ। सॉइल पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, वही तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, खूब फर्टिलाइजर, खूब पेस्टिसाइड विडिसाइड डाला, केमिकल चेंज हो गया नेचर, और जिसमें जो यूजफुल बैक्टीरिया सॉइल के अंदर है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं वो भी खत्म। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। अब हमें ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें डालना जरूरी है, ताकि ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मटेरियल इट विल इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तब प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे वहाँ पे। और वही मैंने बोला ना कि एग्रो केमिकल्स की वजह से, गार्बेज जो उसमें डंप कर रहे हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन सॉइल का बढ़ रहा है। इसके बाद सॉइल इरोजन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है? जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। वो अपने तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन मिट्टी को बांधे रहते हैं। आप देखिए, एक ट्रे में मिट्टी लेके उसमें पौधे उगा लीजिए, मिंट के या किसी चीज, और किसी पौधे को उगा लीजिए, बहुत सारे पौधे को, मिंट के पौधे को ही एक में खाली ट्रे में पानी मिट्टी ले लीजिए, और दोनों में पानी डाल के थोड़ा जस्ट तिलछा करिए, तो देखेंगे कि जिसमें पौधे लगे उसमें से पानी के साथ मिट्टी कम बहेगा, और जिसमें खाली मिट्टी है उस ट्रे में से पानी के साथ मिट्टी ज़्यादा बह जाएगा। इसका मतलब तो प्लांट आर होल्डिंग द सॉइल, एंकोरिंग द सॉइल, वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। और दूसरी चीज़, एक ही खेत में जगह अगर ग्रेजिंग करा दिया जाए तो जानवरों की खुद से भी मिट्टी कट कट करके जब तेज हवा होगी उड़ के चली जाती है, जब टॉप सॉइल उड़ के चली गई। इसके बाद जगह जगह माइनिंग करा दिया, वहाँ भी होता है। इसीलिए पहाड़ी इलाका में जगह जगह क्या करते हैं, टेरेस बनाते हैं, मेड़ बना देते हैं, ताकि पानी वहाँ तक रुके, फिर नीचे वाले में रुके, फिर मिट्टी का कटाव होने से रुके। और मेड़ों पे पौधे लगाते हैं ताकि उनको रोका जाए। देखिए यहाँ पे मेड़े बना रहे हैं, मेड़े बना दिए हैं ताकि मिट्टी का कटाव न रुके। यहाँ पौधे हैं तो मिट्टी का कटाव कम होगा, जहाँ पौधे नहीं रहेंगे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होने लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। लैंडस्लाइडिंग है, तमाम सारे रीजन है सॉइल इरोजन के। डिफॉरेस्टेशन भी है एक रीजन सॉइल इरोजन का। अब इसके बाद बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मीन्स लिविंग बीइंग, जियो मीन्स अर्थ, और साइकिल मीन्स साइक्लिक फ्लो। तो some minerals, some elements which are present in soil, they comes in living being and again they reach into the same soil. Some minerals, some atoms, some molecules present in air, they comes into living being again into atmosphere. अब कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लीजिए, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब वो पौधे उसको ले लिए, पौधे लेके भोजन बनाए, ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन बदल गया, अमीनो एसिड बदल गया, कार्बन उसका यूज हो गया, और जब उसको हम खाएंगे हमारे शरीर में आ गया, और जब हमने रिस्पिरेशन किया, ऑक्सीडेशन हुआ, फिर CO2 बाहर आ गई, वातावरण में आ गई, तो कार्बन का साइकिल चलने लगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। वो नाइट्रोजन को कौन लिया? जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है उसको ट्रैप किए, ट्रैप करके नाइट्रेट में बदल दिए। कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है लेगुमिनस क्रॉप की जगह में, वो भी नाइट्रोजन को ट्रैप करके नाइट्रेट में बदल दिए। अब पौधे ने नाइट्रेट को लिया, उससे अमीनो एसिड बना, प्रोटीन बना। जब उस प्रोटीन को एनिमल ने खाया, उसके सही में आया, और फिर यूरिया के रूप में बाहर आया। इसके बाद प्लांट एंड एनिमल डेथ एंड डीके हुआ, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड टूटा, और टूट करके फिर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में फिर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए। इस तरह से इनका साइकिल चलते रहता है। 78% नाइट्रोजन तब का है, आज भी 78% है, जबकि वही एक सोर्स है जो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए। फिर भी 78% कैसे है? क्योंकि जितना आया नाइट्रोजन नाइट्रेट में, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला, फिर वो प्रोटीन में बदला, फिर जैसे प्लांट में एनिमल में आया, फिर वो डिकम्पोज हुआ। डेड होने के बाद जब वो डेड करेंगे, डिकम्पोज हुआ, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में, फिर उनको रिलीज कर दिए एटमॉस्फेयर में। तो द फ्लो, द साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स
फ्रॉम ए बायोटिक इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है? वाटर, सॉइल, एयर। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके बीच में इनकी साइकिल चलती रहती है, इसी को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। जरा देखते हैं वाटर साइकिल कैसे चलता है। अभी मैं बात कर रहा था इसके बारे में कि यहाँ पे सनलाइट आया, वाटर साइकिल कैसे चला? ट्रांसपिरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन में हीटिंग हुआ, हीटिंग ड्यू टू इवेपोरेशन the water get converted into water vapor, comes into atmosphere. The plant they absorb water and during transpiration they release water in the form of water vapor. Again this water vapor undergo condensation, cooling, get converted cloud, and again in the form of rain water comes on the ground, in the river, in the sea. This way the hydrological cycle, water cycle takes place. Now nitrogen cycle कैसे चला? 78% nitrogen present in atmosphere. That nitrogen trapped by the free living nitrogen fixing bacteria present in soil, Nitrosomonas nitrobacteria, they convert nitrite into nitrate. अब वहां पे जो पौधे उगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। Some symbiotic bacteria present in root nodules of leguminous crop. दलहनी फसलों की जड़ों में, जैसे मटर का पौधा है, चने का पौधा है, उनकी जड़ों में क्या होते हैं? उनकी जड़ों में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये उनकी जड़ों में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होता है, यहाँ नोड्यूल्स होता है। इस नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इस ग्राफ में यहाँ पे नोड्यूल्स है। इस नोड्यूल्स में क्या है? इस नोड्यूल्स में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इसको राइजोबियम लेगुमिनोसोरम कहते हैं। अभी जो बातों में कि नाइट्रोजन है, अभी नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? अमोनियम कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड में, NH4 में बदल देंगे। अभी पौधा लेगा, नाइट्रेट में बदल देंगे, अमोनियम कंपाउंड बदल देंगे, नाइट्रेट में बदल देंगे। अब ये पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, पत्तियों में आएगा, पत्तियों में प्रोटीन बनेगी इससे। तो ये पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। हम लोग भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते जब तक वो नाइट्रोजन कंपाउंड में नहीं बदल जाए। नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलेगा कौन? सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमस नाइट्रोबैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, और फिर राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, और फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड बदल के पत्तियों में जाएगा, वहां पे प्रोटीन बनेगी, और फिर जो प्रोटीन बनी उसको फिर जब एनिमल खाएंगे उनके सही में गया, हम लोग खाएंगे हमारे सही में भी आएगा। अब ड्यूरिंग यूरिनेशन सब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिलीज आउटसाइड। इसके बाद ये पौधे हैं, वो एनिमल हैं, जब वो डेड करेंगे, डीके करेंगे, फिर जमीन पे वो आ गया नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोटीन, फिर वो डिकम्पोज होगा, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जमीन में है, वो उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर वहां से नाइट्रोजन को रिलीज कर देंगे, फिर वो कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में। फिर से वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलेंगे, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन में बदल देंगे। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए, एमाइनो एसिड बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये नाइट्रोजन तब यूज होगा जब नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट और अमोनियम में बदलेगा। और वो कौन बदलेंगे? बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब यहाँ नाइट्रोजन साइकिल आप देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है? यहाँ में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। अब ये 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स कर दिए, सॉइल में आ गया, और प्लांट को किए, प्लांट ले लिए उसको, प्लांट के प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया, टिश्यू का हिस्सा हो गया, और जब प्लांट को एनिमल ने खाया तो एनिमल के बॉडी का प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया। और जब एनिमल क्या किया? रिलीज किया उसको किस रूप में? यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट किया। और इसके अलावा अभी जो है यहाँ अमोनिया भी रिलीज हुई, अमोनिया भी अभी रिलीज हुई, और यह जो है, और बाकी कभी कभी बरसात के दिन में थंडरिंग होती है, इलेक्ट्रिक थंडरिंग, गर्जना होती है, देखते हैं बरसात में खूब गड़गड़ाहट होती है, तो उस समय भी उस एनर्जी से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्राइट, और इसके बाद पानी से घुल करके फिर आकर जमीन में नाइट्रेट बना देते हैं। यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर के अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में फिर यूरिया हम बना देते हैं, फिर वो आकर के जमीन में यूज होता है। तो ये भी एक माध्यम है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री में, नेचुरल फिक्सेशन थंडरिंग लाइटनिंग की वजह से, और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में वही जो
फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स कर देते हैं और वो पौधे ले लेते हैं। और यहाँ से फिर जो अमोनिया बनी वो भी नाइट्राइट में बदल जाती है और नाइट्रेट बदल जाती है, नाइट्रिफिकेशन होता है। लेकिन ये नाइट्रेट और नाइट्रोजन कंपाउंड जब प्लांट और एनिमल डीके करेगा तो डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया अगेन उसमें से नाइट्रोजन को फिर से कहां रिलीज कर देंगे, एटमॉस्फेयर, फिर से एटमॉस्फेयर में उनको रिलीज कर देंगे। डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से ये साइकिल नाइट्रोजन की चलती रहती है। अब कार्बन साइकिल, कार्बन कितना है, 0.03% है एटमॉस्फेयर में। कार्बन साइकिल, कार्बन 0.03% एटमॉस्फेयर में है। अब दिनों दिन बढ़ रहा है ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन जो पौधे हैं, ये पौधे, ये ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किस प्रक्रिया में लेते हैं ये ग्रीन प्लांट, ये पौधे किस प्रक्रिया में लेते हैं, एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लेते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जैसे इन्होंने CO2 को लिया, फोटोसिंथेसिस किया, यहाँ ग्लूकोज बना और ग्लूकोज के साथ साथ अब यहाँ पे क्या देते हैं, ये देते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में यूज हुई। जैसे कोई यहाँ एनिमल है रिस्पिरेशन में यूज किया ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन जब यूज किया फिर ऑक्सीडेशन हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई एटमॉस्फेयर में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 ली गई, ऑक्सीजन दिया गया, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 देते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने लिया, यहाँ पे पौधे ने CO2 आया, ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन दिया, और ऑक्सीजन को सपोज कर लीजिए यहाँ किसी एनिमल ने लिया, ऑक्सीजन को एनिमल ने लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को एनिमल ने लिया, और यह ऑक्सीजन लिया इसने। तो अब ये क्या देगा, जब ये ऑक्सीजन लेगा तो क्या देगा, ऑक्सीजन लेगा या तो फिर क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पौधे ने केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन नहीं लेते, पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी रिस्पिरेशन करते हैं। लेकिन चूंकि पत्तियों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, जितना CO2 ये लेगा उतना ही ऑक्सीजन देगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें जो ऑक्सीजन बनती है उसमें से कुछ ऑक्सीजन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन रात के समय तो लाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो रिस्पिरेशन दिन और रात करते हैं, लेकिन दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रिस्पिरेशन में जो CO2 बनी उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी और भी CO2 लेकर के ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो पौधे CO2 को लेकर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन देते हैं, और हम सभी लोग रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में, पौधे भी रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेकर CO2 देते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा, CO2 की मात्रा बैलेंस करती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू फॉसिल फ्यूल कंबशन, द अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग, इस तरह से बढ़ रही है। तो ये कार्बन साइकिल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में यहाँ पे भोजन बना पौधे में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज बन गया, और फिर जो उसको खाए एनिमल ये सही में आ गया। और बाकी कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, उनसे भी, लाइन से भी कार्बोनेट बनते हैं, उसमें भी कार्बन है। और बाकी फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल जो जमीन के अंदर वो भी बर्न होकर के कंबशन होकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। बाकी प्लांट एनिमल रिस्पिरेशन, देखिए प्लांट भी और एनिमल भी रिस्पिरेशन करते हैं, इनके रिस्पिरेशन से भी CO2 आ गई एटमॉस्फेयर में। तो CO2 and plant are taking due producing oxygen, and the other animal and the plant also taking oxygen and releasing carbon dioxide during respiration. इस तरह से बैलेंस होता है। लेकिन बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का और अंदेशा रहेगा, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का और बढ़ते रहेगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैं बार बार बात कर रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वही मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पे ग्रीन हाउस ऐसा होता है, जैसे आप कभी कार में बैठे हो, कार का शीशा बंद हो, आपकी कार अगर कहीं धूप में खड़ी हो तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि कार के शीशे से जो लाइट अंदर जाती फिर वापस निकल के एनर्जी नहीं आ पाती है और टेम्परेचर अब एकदम से बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जैसे कि जमीन है, ये जमीन है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे सन
सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट आ रही है, यहाँ सन की लाइट आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट हुई है लाइट एनर्जी जमीन से, ये अर्थ से, अभी बताया था इसके पहले, जब अर्थ से रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कौन एब्जॉर्ब कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CF, ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट स्पेस में नहीं जा पाई, तो ये एनर्जी यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई और यहाँ का टेम्परेचर एकदम से क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब टेम्परेचर बढ़ गया, तो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए तो ठीक है, लेकिन CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। इसका मतलब कि जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है पृथ्वी पे, मैक्सिमम अमाउंट फिर जैसे रिफ्लेक्ट हुआ तो वो तो फिर एब्जॉर्ब ही हो गया ना, तो फिर यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दिनों दिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जगह जगह जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे पॉली बैग बना के हाउस बनाए जाते हैं और उसमें पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो लाइट एनर्जी आए उसके अंदर तो बाहर ना निकले और वहाँ टेम्परेचर इतना नॉर्मल हो जाए कि पौधे आसानी से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे भी अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CF है, मीथेन है, ये क्या है? ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस का अनुपात क्या है? जरा देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का अनुपात क्या है? इसमें सबसे ज्यादा तो जो इनका परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड 60% रोल जो है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके बाद यहाँ पे 14% किसका है? मीथेन का है, CH4 का। और इसके बाद 6% किसका है? 6% का है CS, क्लोरोफ्लोरो। तो ग्रीन हाउस गैस में 60% रोल प्लेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, 14% role played by the methane and 6% role played by the chlorofluorocarbon. So these are the greenhouse gases. ये greenhouse gases है। ये जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाती हैं और ऐसे ही इनका मात्रा बढ़ता रहा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर वही इल नीनो इफेक्ट, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे और वो जो है समुद्र के पानी को, समुद्र के लेवल को बढ़ा देंगे और वहाँ पे बाढ़ आएगी, नदियों में बाढ़ आएगी और जहाँ सूखा है वहाँ और ड्राउट हो जाएगा। तो दोनों एडवर्स कंडीशन उत्पन्न होंगे। अब इसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? ओजोन लेयर क्या है? आप जानते हैं हमारे जमीन से 25 किलोमीटर ऊपर ये हमारी धरती, यहाँ अर्थ और से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर, 25 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे एक स्फीयर है, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। यह ओजोन एक छतरी का काम करते हैं। जैसे आप अम्ब्रेला लगाए हैं तो धूप भी नहीं लगेगी, बरसात होगा तो बरसात नहीं होगी, और अम्ब्रेला में कहीं होल हो जाए तो धूप भी अंदर आएगी, बरसात होगा तो पानी भी अंदर आएगा। तो दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एबव 25, लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ये ओजोन लेयर है और यह स्ट्रेटोस्फीयर में इट इज एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। और यहाँ सन से क्या आ रहा है? लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है आने दीजिए, लेकिन यहाँ पे खतरनाक गैस भी आती है, इसको कहते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यह अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। अगर ये जमीन पे आ जाए, यहाँ आएगी तो यहाँ पे जितनी वनस्पतियां हैं, यहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं उनके सेल को डैमेज करेगा, जितने एनिमल हैं उनके भी सेल को डैमेज करेगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। आंखों में हमारे स्नो ब्लाइंडनेस कर देगा। इसके बाद स्किन में म्यूटेशन, स्किन में जो है कैंसर कर देगा, DNA को म्यूटेट कर देगा। ये इतना हार्मफुल है, ये इतना डेंजरस है। कौन? अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट बी, UVB तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। UVB, अल्ट्रावायलेट बी ये बहुत खतरनाक है। इनका ये स्नो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर एंड म्यूटेशन इन जीन। तो यहाँ पे जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आता है, जैसे जैसे पानी को गर्म किया, भाप में बना, फिर पानी
भाप ठंडा हो गया, फिर पानी में बदल गया, टेम्परेचर यूटिलाइज हो गया। तो पानी भाप में बदला, फिर ठंडा हो गया, फिर भाप पानी में बदल गया, पानी फिर भाप में बदला, फिर ठंडा हो गया, फिर पानी में बदल गया। उसकी एक स्थिति है, भाप से पानी, पानी से भाप, टेम्परेचर की वजह से बन रहा है। वैसे ही यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज आया, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आएगा इसकी उपस्थिति में, अब यह ओजोन जो है, ये ओजोन O3, यह ओजोन क्या करेगा, O2 प्लस O, यह O2 ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यह नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाएगा। लेकिन फिर ओजोन रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज यूज हो गया, अब ये स्प्लिट हो गया O2 और O में, फिर से O2 और O मिल करके O3 बना लेगा, फिर से O3 बना लेगा। जैसे बोला पानी से भाप, भाप से पानी। तो ओजोन लेयर में जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आता है, वो ओजोन को O2 और O में बदलता है और फिर O2 और O मिलकर के फिर ओजोन बना लेते हैं। ये बनना बिगड़ना चलते रहता है, 24 घंटे चलते रहता है मेरा, जब भी अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, और इसलिए ओजोन बनी हुई है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ, जब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, इसमें CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रीजर से निकलता है, एरोसोल से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है, और इनकी मात्रा बढ़ने लगी। अब ये CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसकी मात्रा बढ़ने लगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब इनकी मात्रा बढ़ने लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे CFCS लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने लगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या करता है, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको इंगल्फ कर लेता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आया ओजोन में, ओजोन O3 टूट करके O2 और O में बदला, फिर O2 और O3 में बदल जाता। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो O2 और O बदला था, फिर O2 और O मिलकर O3 बदलता। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने नेसेंट ऑक्सीजन को इंगल्फ कर दिया, इसे कंबाइन हो गई, तो अकेले O2 कैन नॉट फॉर्म O3, ये वो तो कंबाइन हो गया CFCS से, तो एलोन O2 विल नॉट फॉर्म O3। जब O2 और O मिलता तब O3 बदलता। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंगल्फ कंबाइन हो गया इससे नेसेंट ऑक्सीजन से, एटम से। अब इस प्रक्रिया की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीटेड एट अंटार्कटिका, वहां पे होल बन रहा है, और जिसकी वजह से डेंजर है कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आ जाएगी और नुकसान करेगी। जरा देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, ये ट्रोपोस्फीयर जहाँ हम लोग रहते हैं, ये जमीन के ऊपर ट्रोपोस्फीयर जहाँ हम लोग हैं सांस लेते हैं, और ये स्ट्रेटोस्फीयर है। यहाँ सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर हमने बताया O3 O2 प्लस O में टूट रहा है, फिर O2 और O मिलके O3 बन रहा है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एमिट होने लगा, रेफ्रिजरेटर से, कंडीशनर से, एरोसोल से आने लगा, तब क्या हुआ, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंगल्फ द ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड देन एलोन ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म O3। जो O3 से O2 और O बना था, उसका ऑक्सीजन किसने इंगल्फ कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। अब यहाँ स्प्लिट हो रहा है। अब देखिए अंटार्कटिका यहाँ होल हो गया, ओजोन लेयर नहीं है, यहाँ डिप्लीट हो रही है। अब ऐसे ही बढ़ते गया तो क्या होगा, ultraviolet rays will come on the earth and it will create problem. It will cause, ultraviolet B is very dangerous. It causes snow blindness, skin cancer, mutation in gene. So many problem takes place. So इसलिए we have to check the depletion of ozone layer. कैसे चेक होगा, we have to check the emission of chlorofluorocarbon, फैक्ट्रियों से, एयर कंडीशनर से, इन सब से हमको इनको रोकना होगा निकलने से, ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सकें. So this is all about our natural resources, ozone layer depletion, greenhouse effect, and हम अब नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, कैसे यूज करें. 3R क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. एक तो रिड्यूस करें उसके यूज को. रिड्यूस करने का मतलब यह है कि कम से कम यूज. जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, डीजल है, ये कम है. जब कम है तो उनको ऐसे हिसाब से यूज करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, सोलर एनर्जी यूज करें, हाइड्रो एनर्जी यूज करें, इसको यूज करें, विंड एनर्जी यूज करें, तब जाके हम बचा सकेंगे. इसके बाद
रिसाइकिल का मतलब जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, उसको फिर से जो टूटे फूटे प्लास्टिक के सामान है उनको फिर से उन फैक्ट्रियों तक भेजा जाए, कबाड़ी वाले कलेक्ट करके ले जाते हैं, वहाँ उसको मेल्ट करा के फिर से प्लास्टिक का सामान आ जाए। पॉलीथीन बैग जो यूज हो रहा है, पॉलीथीन बैग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, पॉल्यूशन फैला रहा है, उस पॉलीथीन बैग को कलेक्ट करके उसको क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाए और पाउडर में बदल करके कोलतार में मिला करके सड़क बनाने में इस्तेमाल हो जाए, सड़क मजबूत हो जाएगी। तो वी कैन रीयूज इट और पानी को भी नहीं लगने देगा सड़क में, तो इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद रीयूज में जैसे कंप्लान लाए, आप कंप्लान खाए, उसका शीशी खाली है, अब किचन में उसमें मसाले रखने के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा। अलग अलग यूज में कोई बकेट है, उसको गमले का पौधा लगा दिया, उसका रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली और अपने अर्थ प्लानेट को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं फैलने देंगे। और जब पॉल्यूशन नहीं फैलेगा तो पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल बैलेंस रहेगा और इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू।